Here we are given that scalar product of vector A is given. Scalar product of this vector A, which is I plus j plus k. Vectors B and C, vector B and C are another two given vectors. B is 2i plus 4j minus 5k, and vector C is lambda I plus 2j plus 3k. So these are the given three vectors. So the scalar product of this vector A with unit vector along with the sum of the vectors B and C is equal to 1. That means you have to find the dot product of this vector A with sum of these two vectors, and hence we require sum of the vector of B and C. So first we will find B and C, and that is equal to 1 is given. So here question is find the value of lambda and also find the unit vector along with the B plus C. This is the question. So let's try to solve this question one by one. So first we have to find the sum of these two vectors B plus C, because you have to find the dot product of this vector A along with this B plus C. So what is our B plus C? It's a 2 plus lambda, है ना, I component का addition होगा. So it's a 2 plus lambda I plus 4 plus 2 6j minus 5 plus 3 minus 5 plus 3, it's a minus 2k. This is B plus C. You have to find the dot product of vector A with unit vector along with this B plus C. So to find the unit vector along with this vector B plus C, we require magnitude. So magnitude of this vector B plus C is nothing but the square root of sum of its scalar components, that is 2 plus lambda whole square plus 6 square plus minus 2 square. Done. And this is equal to square root of 2 plus lambda whole square, that is 4 plus 2 to the 4 lambda plus lambda square plus 36 plus 4, and therefore magnitude of this vector B plus C is nothing but the square root of क्या होगा lambda square plus 2 lambda 2 to the 4 lambda plus 44. This is the magnitude of this B plus C. So what is the unit vector along with this vector B plus C? Unit vector along with this vector B plus C is nothing but the unit vector along with this vector B plus C. तो क्या होगा B plus C divided by magnitude. So this one is vector B plus C divided by magnitude of B plus C. That is the unit vector along with this B plus C vector. So our B plus C vector is 2 plus lambda, this one, 2 plus lambda I plus 6j minus 2k divided by magnitude of this addition of this vector B plus C, that is a square root of lambda square plus 4 lambda plus 44. This is 4 lambda, this is 44. Done. This is unit vector along with this B plus C. Now read the question again. What we are given? We are given that the scalar product of this vector A, scalar product of vector A with unit vector along with this B plus C, unit vector along with the sum of the vector B plus C is equal to 1. That means scalar product, that means dot product of vector A with unit vector along with this sum of the vector B plus C, that means this one, A dot vector B plus C upon magnitude of this vector B plus C. This dot product is given and this dot product is equal to 1. Clear? ये समझ में आया? Dot product of vector A with, हाँ, तो अभी इन दोनों का dot product करते हैं. Vector A is I plus J plus K cap. Dot product with ये वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है जो हमने यहाँ पर डिराइव किया हो, दिस वन. डन. इट्स अ 2 plus lambda I plus 6j minus
2k upon magnitude. This is scalar quantity. This is one scalar quantity. Lambda square plus 4 lambda plus 44, and this dot product is equal to 1. So we have to perform dot product on numerator. This is scalar quantity. So we can take this one as a constant. So denominator में constant आ गई बाहर. So it's a lambda square plus 4 lambda plus 44. And numerator dot product हमें पता है i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ multiplication scalar component का. Here scalar components are 1, 1 and 1. So 1 into 2 plus lambda. So it's a 2 plus lambda into 1 into 6. So plus 6 into 1 into minus 2 into minus 2 equal to 1. Scalar product of two vector is scalar quantity. So this is one scalar quantity. Simplify this, we are getting the value of lambda. So numerator is lambda plus 6 plus 2 minus 2 cut. So it's a lambda plus 6. ये जो डिनोमिनेटर है उसको मैं सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर में. So that will be equal to square root of lambda square plus 4 lambda plus 44. Done. Now taking square on both sides. So taking square on both sides, it will be lambda plus 6 whole square हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. So it will be lambda square plus 4 lambda plus 44. Done. अभी इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा. एक्सपांशन lambda square plus 12 lambda plus 36 equal to lambda square plus 4 lambda plus 44. So both side lambda square cut. 12 lambda minus 4 lambda. It will be 8 lambda. 8 lambda equal to 44 minus 36. 44 minus 36, that is equal to 8. So we are getting value of lambda. Lambda is 1. Done. So this is the first answer. क्या क्वेश्चन था? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा. तो लैम्बडा फाइंड कर लिया. दूसरा उसका पार्ट है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग विद बी प्लस सी. ये यूनिट वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर आपको लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट करना है. डन. सो यूनिट वेक्टर अलोंग विद दिस ए प्लस बी. तो ये लिखते हैं आप यहाँ यूनिट वेक्टर अलोंग विद दिस बी प्लस सी इज लैम्बडा की वैल्यू पुट करो. सो 2 प्लस लैम्बडा, सो 2 प्लस 1. सो इट्स 2 प्लस 1 क्या होगा? 3i प्लस 6j माइनस 2k. दिस इज न्यूमरेटर डिवाइड बाय, यहाँ पर लैम्बडा की 1 वैल्यू पुट करो. 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 4 एंड 44. 44 प्लस 4 48 प्लस 1 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49. तो दैट इज इक्वल टू 7. तो आपका आंसर होगा 3/7. 3/7 i प्लस 6/7 j माइनस 2/7 k. Done. So this is the unit vector along with this b plus c. Very good question is there. आ गया समझ में, है ना? क्योंकि ये लास्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सब. और आज सब कितने लोग आप कोई आए दूसरा? ओके कोई बात नहीं. चलो क्वेश्चन नंबर 14. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. देखो हियर वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स. व्हाट वी आर गिवन? वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इसका मतलब क्या होता है? If two vectors are mutually perpendicular to each other, dot product of their two vectors is equal to 0. है ना? कभी भी दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है. So can we write like this? Vector A dot vector B, vector B dot vector C, and vector C dot vector A equal to 0. If two vectors are mutually perpendicular to each other, their dot product is 0. Done. So this is given. And three vectors are mutually perpendicular to each other and equal in magnitudes. Magnitude of each vector is equal. And magnitude of each vector, so mod A, magnitude of vector B and magnitude of equal vector C are equal. है ना? Equal. Suppose lambda assume कर लेते हैं, they are equal to lambda. है ना? Unit नहीं है लेकिन equal है. So magnitude of each vector is equal and they are mutually perpendicular to each other. So we have to prove that this vector, क्या prove करना है? Prove that, question is prove that vector A plus B plus C, this is one resultant vector, this is equally inclined to, this vector is equally inclined to
गिवन थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ये तो तीनों वेक्टर है ना ए बी एंड सी, तीनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू दिस सेपरेट वेक्टर्स ए बी एंड सी। ये एंगल का ये तीनों वेक्टर के साथ एंगल इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है ना। एंगल मेड बाय दिस ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर विथ एंगल ए विथ वेक्टर ए विथ वेक्टर बी एंड विथ वेक्टर सी आर इक्वल, थीटा इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो कैसे प्रूव करते हैं। सो नाउ दिस आर द गिवन थिंग्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सॉल्यूशन। Here we are given that magnitude of each vectors are equal and they are mutually perpendicular to each other. Now for this vector we are writing, if magnitude of a plus b plus c होल स्क्वायर है ना, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए प्रूव करना है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं। तो प्रॉपर्टी में पता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें मोड ए स्क्वायर, तो वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, खुद के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज ए प्लस बी प्लस सी मोड स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ ए प्लस बी प्लस सी के साथ होगा। यस, अभी यहाँ पर एक्सपांशन करो है ना, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लो बोलेंगे, तो वो क्या होगा, इट्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसके बाद ए डॉट बी, ए डॉट सी, उसके बाद बी का बी डॉट ए, बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी का सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन देखो, ये तीनों ए डॉट ए, बी डॉट बी एंड सी डॉट सी क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मोड का स्क्वायर है ना, मोड ए स्क्वायर होगा प्लस मोड बी स्क्वायर होगा प्लस मोड सी स्क्वायर होगा, और बाकी सब टर्म क्या होगी देखो, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बाकी सब जो वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगी क्या होगी, जीरो, तो बाकी टर्म्स सब टर्म्स क्या हो गई, जीरो। इज दैट क्लियर? और सबका मैग्नीट्यूड भी बताया हमें, देखो मोड ए स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर, मोड सी स्क्वायर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, लेमडा स्क्वायर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेमडा स्क्वायर, लेमडा होगा, और मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड लेमडा, तो ये सारे क्या होंगे, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, तो वो हो गया 3 टाइम्स लेमडा स्क्वायर, 3 टाइम्स लेमडा स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, and hence what we can write, magnitude of a plus b plus c equal to √3 लेमडा, है ना। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हमें जो प्रूव करना है ना, उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला, क्या निकाला, मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3 टाइम्स ऑफ लेमडा। क्लियर नाउ? अभी हमें क्या करना है, अभी हमें प्रूव करना है कि दिस वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइन टू वेक्टर ए बी एंड सी, दैट मीन्स ये वेक्टर का एंगल वेक्टर ए के साथ, वेक्टर बी के साथ एंड वेक्टर सी के साथ एंगल इक्वल है। सो लेट्स अज्यूम, क्या अज्यूम करते हैं, लेट्स से दैट वेक्टर a प्लस बी प्लस सी है ना मेक्स एंगल्स तीनों वेक्टर के साथ अज्यूम कर ले कि सपोज θ1, θ2 एंड θ3, डन, मेक्स एंगल θ1, θ2 एंड θ3 विथ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रिस्पेक्टिवली। ये जो वेक्टर है ना a प्लस बी प्लस सी, वो तीनों वेक्टर के साथ θ1, θ2, θ3 एंगल बना रहा है। अभी हम प्रूव करेंगे θ1, θ2 एंड θ3 तीनों कैसे इक्वल, तो वो इक्वल इंक्लाइन हो जाएगा। क्लियर? ये अज्यूम कर लिया, ये समझ में आया? अभी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है ना, a प्लस बी प्लस सी और a के बीच का एंगल निकालना है, तो दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, θ1, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट वाला, cos θ1 इक्वल टू जो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है उनका डॉट प्रोडक्ट, सो एंगल a, वेक्टर a और a प्लस बी के बीच में एंगल निकालना है, तो इट्स a प्लस बी प्लस सी होगा डॉट प्रोडक्ट, है ना, ऐसा फॉर्मूला था, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, cos θ इक्वल टू
वेक्टर ए और बी के बीच में है सपोज, तो ए डॉट बी होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, मोड ए मोड बी। यहाँ पर एक वेक्टर हमारा वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी की जगह पर कौन सा है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड होगा। आया समझ में? तो ये हमें क्या देगा, वेरी गुड, ये हमें क्या देगा, दिस विल गिव अस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड दिस ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका एंगल क्या आएगा, देखो cos थीटा वन इक्वल टू ये डॉट प्रोडक्ट होगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी डिवाइड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए वो भी हमें पता है, मोड ऑफ वेक्टर बी प्लस सी वो भी हमें पता है, और ये डॉट प्रोडक्ट भी हमें पता है कितनी है, 0। और ए डॉट ए, हाँ, और ए डॉट ए वो कितना होगा, मोड ए स्क्वायर, है ना, दिस वन इज मोड ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बाद में लिखते हैं, अभी इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो मोड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन मोड ए, एक कट हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज लैम्बडा, दिस इज इक्वल टू लैम्बडा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज √3 लैम्बडा, सो इट्स √3 लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कट, तो थीटा वन आएगा। थीटा वन इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √3। डन, ये थीटा वन आ गया। सिमिलरली आप थीटा टू फाइंड करो, थीटा थ्री फाइंड करो, तो सब आप क्वेश्चन नंबर 15। So here we have to prove that vector A plus vector B dot vector A plus vector B equal to mod A square plus mod of vector B square, है ना, if and only if A and B are perpendicular to each other. This result will be true result if A and B are, if A and B are mutually perpendicular to each other, ना दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे ना, तभी जाके ये रिजल्ट हम प्रूव कर पाएंगे, ऐसा प्रूव करना है। एंड ऑल्सो वी आर गिवन दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0। डन, तो ये तो सिंपल है। नाउ व्हाट वी आर गिवन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें, सो इट विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। वेक्टर्स इसको लिखेंगे ए डॉट ए, दैट इज मोड ऑफ ए स्क्वायर, प्लस इसको लिखेंगे मोड बी स्क्वायर, प्लस डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव है, तो ए डॉट बी लिखो कि बी डॉट ए लिखो, सेम रहेगा, इट्स ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आएगा। डन, अभी हमें प्रूव क्या करना है, दिस इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर, और ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई, तो इसको जीरो करना है, तो ये जीरो कब होगी, देखो मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस दिस वन इज 2 into a dot b, according to definition of dot product, it's a mod a mod b cos theta. Done. So mod a and mod b are not equal to 0, this will not 0, this term will be 0 if cos theta is 0, and hence we can say that vector a plus vector b dot vector a plus vector b equal to mod a square plus mod b square if cos theta is equal to 0. And what is the meaning of cos theta equal to 0? Cos theta 0 कब होगा? If two vectors are perpendicular to each other, or you can say theta equal to 90 degree, and that means if two vectors are perpendicular to each other. Prove. Clear? Done. अभी ये था क्वेश्चन नंबर 15. Now MCQs भी देख लो, चलो 16 नंबर का एमसीक्यू देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, है ना, वेक्टर ए है वेक्टर बी है और दोनों के बीच एंगल थीटा है। सो
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कब होगी। तो डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की देखो क्या होती है, ए डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इट कैन बी जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डन। तो ये पूरे इक्वेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। if cos theta is greater than equal to zero, we can say that this entire expression is greater than equal to zero। और cos theta 0 से greater than equal to 0 कब होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। सो दिस विल बी ट्रू ओनली व्हेन, कौन सा ऑप्शन है, बी, ऑप्शन बी इज द आंसर, व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। है ना, ये एमसीक्यू भी अच्छा था। 17 नंबर का एमसीक्यू देख लो। 17 नंबर, ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 हुआ, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज द यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा if which condition is fulfilled। डन। देखते हैं इसको, देखो कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों यूनिट वेक्टर है, सो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा कब, उसके लिए थीटा की कौन सी कंडीशन आएगी, है ना, विच वैल्यू ऑफ थीटा दिस ए प्लस बी बिकम्स यूनिट वेक्टर। सो नाउ व्हाट वी आर गिवन, ए प्लस बी इज यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर दिया है तो इसका स्क्वायर कर लें क्योंकि डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। डन। तो ये क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 1। सो डॉट प्रोडक्ट, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1। ए डॉट ए बी डॉट बी पता है हमें क्या होता है, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ये दोनों लास्ट टाइम जो सिंप्लीफिकेशन किया वही है ना, कॉम्यूटेटिव होता है, इट्स अ ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 1। डन। नाउ डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, थीटा लाना पड़ेगा ना क्योंकि थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो इट्स अ मोड ए स्क्वायर, ये पता है हमें कि ये 1 हो जाएगा, मोड बी स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा, प्लस ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ए डॉट बी, सो इट्स अ मोड ए मोड बी cos थीटा इक्वल टू 1। अभी हमारे पास सारी वैल्यू है ना, मोड ए मोड बी की डेफिनेशन, दे आर इक्वल टू 1 बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर, so 1 square 1 b square that is also 1, 2 into this is also 1, so this is cos theta equal to 1। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो क्या आएगा, 1 plus 1 2, 1 minus 2 minus 1 by 2, cos theta is minus 1 by 2। तो बोलो थीटा की कौन सी वैल्यू 1 by 2 होती है, माइनस वैल्यू कौन सी होती है, cos theta equal to cos पाई माइनस पाई बाय 3 होगा, so it's a cos 2 pi by 3, so we can say theta is 2 pi by 3, theta equal to 2 pi by 3। डन। थीटा इक्वल टू 2 pi by 3, कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाएगा, चलो 18 नंबर, 18 number says that the value of I dot j cross k plus j
डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, है ना, देखो मैंने सिखाया था, आई जे के, है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव। डन। सो जे क्रॉस के, तो ये जे है ना, जे क्रॉस के तो क्लॉकवाइज में है तो आई आएगा। सो दिस इज इक्वल टू आई डॉट, इसका क्या आएगा, आई, जे क्रॉस के इज आई, आया समझ में, प्लस जे आई क्रॉस के तो ये आई है, आई क्रॉस के देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या आएगा, माइनस जे प्लस के इंटू आई क्रॉस जे अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आएगा के, तो इट्स के डॉट के। सो आई डॉट आई हमें पता है क्या होता है, आई डॉट आई यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन, 1, this one is minus j dot j, that is minus 1 plus k dot k 1, so 1 minus 1 0 plus 1 equal to 1 is the answer। कौन सा ऑप्शन है, C is the answer। अंडरस्टूड। और क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट कर देते हैं, चलो। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b, so dot product, magnitude of dot product and square cross product equal to, for which value of theta, so here magnitude of dot product is equal to magnitude of cross product, this condition is fulfilled for which value of theta, सिर्फ डेफिनेशन यूज करो, फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज a डॉट b, a डॉट b is nothing but the mod a mod b cos थीटा, और मैग्नीट्यूड है तो cos थीटा का भी मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मोड a मोड b साइन थीटा, और n वेक्टर भी होता है लेकिन हमें मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है तो स्केलर कंपोनेंट ही लेंगे। डन। तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट, तो ये मोड ऑफ cos थीटा और ये मोड ऑफ साइन थीटा हो गया, दोनों पॉजिटिव आएगा। साइन थीटा को नीचे ले ले तो क्या होगा, मोड ऑफ साइन थीटा अपॉन मोड ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1, पॉजिटिव लेना है। सो टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1, विच वैल्यू ऑफ थीटा इज 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव के लिए थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। डन। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, कौन सा ऑप्शन आया, बी। सो हियर बी इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स।